बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारे पास हमारी स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस डिस्प्ले पे हैं, ठीक है। वी हैव टू क्वेश्चंस ऑन डिस्प्ले। द फर्स्ट वन जो हमारे पास ईयर आ रहा है मई जून 1513 आ रहा है। मई जून 1513 हमारे पास ईयर है। एंड द टू क्वेश्चंस व्हिच आर ऑन डिस्प्ले आर व्हाट? डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट, and the next question is for 3 marks. Briefly explain two of Mintzberg's roles of management. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस है हमारे पास. So let's start with the short answers and hopefully आज की क्लास में हम एक लॉन्ग आंसर भी देख लेंगे. तो देखो दो तरह के सवाल आ सकते हैं. Either you can get a question in which the question is specifically demanding to define the term management, or the question is asking to tell that who is a manager. देखो management is a process while manager is the person responsible for carrying out those activities. So let's start with this. हम आंसर लिखेंगे पहला वाला, define the term management. ठीक है, कैमरास को थोड़ा बंद कर देते हैं. Perfect. So the question we have over here is what? Define the term management. तो इसका आंसर लिखते हैं. It is the process. It is the process which involves. It is the process which involves setting objectives. It is the process which involves setting objectives, organizing resources, coordinating activities, and controlling the business operations. वही मैनेजमेंट के फंक्शंस हमारे पास लाइन से आ जाते हैं. प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, कमांड एंड कंट्रोल. ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि आप बोलोगे इट इज द प्रोसेस. लेकिन अगर आपके पास सवाल आता है हु इज अ मैनेजर, तो वही डेफिनेशन है. Manager is a person responsible for setting objectives, organizing resources, coordinating activities, and controlling the business operation. Definition similar है, वहां पर person है और यहाँ पर process है. Everyone online लिख लिया आप लोगों ने आंसर पार्टेगा? जी. ठीक है, perfect. Moving on to the next part. The next part, part B states, briefly explain two of Mintzberg's roles of management. अब देखो हेनरी मिन्सबर्ग कौन था? हेनरी मिन्सबर्ग was the person who identified 10 managerial roles. इसने 10 managerial roles identify करे हैं जिनकी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं: interpersonal, informational and decisional roles. ठीक है, हमारे पास 10 रोल्स हैं जिनको हमने 3 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया. द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आस्किंग टू राइट एनी ऑफ 2 रोल्स दैट मिन्सबर्ग आइडेंटिफाइड. तो लिखते हैं इसका आंसर. Monitored is the role in which monitored is the role in which the manager collects information
what is going on? What is going on outside the organization? Outside the organization, as well as the internal operations, as well as the internal operations so decisions can be made accordingly. So decisions can be made accordingly. एक role हो गया. Now we are going to write the next role. Entrepreneur is a role. Next line से लिख लो या उस line से कंटिन्यू करना तो मसला नहीं. Entrepreneur is a role in which the manager takes risk, in which the manager takes risk of starting up a new venture, or entering a new market, तो हमारा यहाँ पर 3 मार्क का सवाल एंड होता है. हमने 2 सवाल लिखे, डिफाइन द मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 ऑफ मिन्सबर्ग्स रोल्स ऑफ मैनेजमेंट. एवरीवन ऑनलाइन क्लियर है? परफेक्ट. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं. अच्छा इस क्वेश्चन की जरा हम वो देख लें. एग्जामिनर रिपोर्ट पार्ट ए बोल रहा है, जो हमने डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट लिखा, वो क्या बोल रहा है, मेनी कैंडिडेट्स वर एबल टू करेक्टली डिफाइन मैनेजमेंट. तो इसमें बहुत सारे लोगों को मसला नहीं आया, लेकिन जो वीकर आंसर्स थे, दे रेफर टू मैनेजमेंट एज रनिंग और मैनेजिंग द बिजनेस. मींस वही वर्ड्स को वापस रिपीट कर दिया, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. Part B is saying several candidates were able to identify Mintzberg's roles of management with sufficient explanation. मिल गए roles. बहुत सारे लोगों ने roles को identify करे, लेकिन उसकी explanation नहीं दी. लेकिन जो weak क्या थे, ओके ठीक है, कुछ candidates जो नीचे लिखा हुआ है, some candidates wrongly referred to leadership styles. यहाँ पर एक गलती ये हुई कि लोगों ने roles की जगह क्या लिख दिया, लीडरशिप स्टाइल. तो ये हमने गलती नहीं करी. ओके मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी. हाँ, और ये वाला आंसर मेरे ख्याल से पिछली क्लास में हमने वाला आंसर किया अभी, मोटिवेशन वाला आंसर, टेलर वाला. Okay, the question in front of us is what? Distinguish between strategy and tactics. क्वेश्चन हमारा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंदर थोड़ा सा ताल्लुक आता है, इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन और मैंने ज्यादा क्वेश्चन देखा हुआ भी. हाँ बिल्कुल. तो सवाल है हमारे पास फॉर 2 मार्क्स, distinguish between strategy and tactics. The year is May June 16 and the variant is 1-1. ठीक है, तो आंसर लिखते हैं इसका, distinguish between strategy and tactics. सिंपली 2 मार्क का सवाल है. डिस्टिंग्विश करने का बेसिक तरीका क्या है, दोनों की डेफिनेशन लिख दो, then you are set. इसमें ला करते हैं. strategy is the long term plan of action
strategy is the long term plan of action, the long term plan of action that the business follows, in order to achieve its aims, full stop. Strategy is usually set by the senior management, ठीक है. Strategy is usually set by the senior management. हमने strategy के बारे में बता दिया. Tactics, अगली लाइन से लिखो ज्यादा बेटर. Tactics are the medium term strategies. Tactics are the medium term strategies implemented to achieve the overall aims. They are set by the middle management. MSB हमारे सामने आ रही है. Strategy, long term. Tactics, part of implementing of an overall strategy. दोनों बातें हमने लिखी, हमारे मार्क्स पूरे हैं. The next question we have over here is briefly explain 2 stages of business decision making. Decision making के 2 steps बताओ. यार देखो बहुत सारे, ठीक है, आपके पास चैप्टर के अंदर पूरी लिस्ट है. We need to write any 2. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम लिख सकते हैं, प्लानिंग है, एनालिसिस है, चॉइस है, इंप्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है, कोई भी, बट वी नीड टू एक्सप्लेन देम. इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? एक्सप्लेनेशन. तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन देख लो वापस से सही तरीके से. ब्रीफली एक्सप्लेन 2 stages of business decision making. 2 stages of business decision making. Everyone online clear है? इशू तो नहीं है? परफेक्ट, ठीक है, बिस्मिल्लाह करना है. Planning is a stage in which the organization sets objectives, targets, sets objectives, targets to achieve, sets objectives, targets, and makes plans to achieve the aims of the business. ये लिख लिया. नेक्स्ट लाइन में लिख दो, evaluation is a stage in which the managers evaluate and see
whether the organization is achieving its targets or changes are required ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वालों कोई सवाल या सब सेट है? ओके, थैंक यू। चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। होपफुली हमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए मैनेजमेंट लीडरशिप पे। दिस इज पार्ट ऑफ HR, अभी नहीं आते इसमें हम, ठीक है। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट जी। मैं बोलूँ ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दें, वो नेट का मसला हो गया। आपने कहाँ तक लिखा है जरा बताना। वो वेदर द ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा एक लाइन दिए थे, पढ़ के बताना सही तरीके से। ये था कि evaluation is a stage in which managers evaluate and see whether the organization is achieving its targets, or changes are needed. कौन सा? The most effective way to realize human potential in a manufacturing business is to give high financial rewards to the workforce. Do you agree? अब देखो 20 मार्क का आंसर है, तो सिंपल सी बात है, हम बात करेंगे मोटिवेशन की, हम फाइनेंस को फोकस तो रखेंगे, बट वी नीड टू राइट अदर थिंग्स एज वेल। इफ यू, अगर मैं आपको एक्सेस दे दूंगा मेरी पिछली क्लास के अंदर, उसके अंदर जब हमने इसी तरह का सवाल लिखा है टेलर के ऊपर, कि टेलर्स थ्योरी इज द मोस्ट इफेक्टिव थ्योरी ना, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसी तरीके का यही सवाल है, लेकिन ये थोड़ी सी साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो आप देख लोगे तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं 20 मार्क्स पे जाना नहीं चाह रहा, विद टाइम हम जाएंगे, लिखेंगे 20 मार्क्स का भी, लेकिन विद टाइम। ओके, वापस हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ वी कैन चेक द ईयर, इट इज अक्टूबर नवंबर 16 1 2। अपने पास ईयर नोट डाउन कर लो प्लीज, अक्टूबर नवंबर 16 1 2। एंड द क्वेश्चंस दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस आर, define the term leadership. The question is what? Define the term leadership. आंसर लिखते हैं, it is the ability of the managers to motivate and influence individuals to achieve
a particular objective or target without using formal authority. अगर इसको आसान अल्फाज में बोलूं तो डंडे के जोर के बगैर काम करना, लोग अपनी मर्जी से आपकी बात सुने और काम करें. This is leadership in which we motivate and influence individuals to achieve a particular objective or target without using formal authority. डंडे का इस्तेमाल किए बगैर काम करवाना. This is what leadership. Moving on to part 2 for 3 marks. Briefly explain 2 advantages of autocratic leadership style. Simply directly examiner ने बोला है 2 advantages बता दो autocratic के leadership style. अब देखो हम डिफाइन नहीं करेंगे, इतने मार्क्स नहीं है, टाइम ज्यादा होगा. डायरेक्टली बताना है एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या हो सकते हैं एडवांटेजेस. परफेक्ट. एक तो आ गई हमारे पास बात लेस टाइम कंज्यूमिंग. तो पहले ये लिख लेते हैं the advantage of autocratic leadership style is the advantage of autocratic leadership style is as there is only one way communication, as there is only one way communication the decision making and coordination is fast and less time consuming. अब अगली लाइन से हम अगली एडवांटेज लिख लेंगे. ठीक है, लिखते हैं the other advantage would be that when the workers are not skilled, that when the workers are not skilled, autocratic leadership style may ensure that the organization achieves its targets without any delays. ठीक है, यहां पर ये कंप्लीट होता है हमारे पास. चलो एक और सवाल आ रहा है हमारे उसी चैप्टर से. अब करेंटली मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ना, दे आर फ्रॉम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. हमारे पास वापस है क्लियर हमारे सामने May June 17 1 and the question is right in front of us, which is question number 4. सर ना ईयर बता दें. May June 17 1 थोड़ा सा फास्ट जाएंगे. आज देखो मैं चाह रहा हूं हमारी क्लास एक ही सेशन के अंदर पूरी रिकॉर्ड ले रहा है,
और मुझे ब्रेक ना करना पड़े तो एक और सवाल और उसके बाद हम एक और सवाल करने की कोशिश करेंगे। सवाल आ रहा है हमारे पास, डिफाइन द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। पुलिस क्लब में एक सेक्शन मारा था, डिफाइन द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। चलो देखते हैं, ओ हो सकता है। तो लेट्स राइट दिस आंसर। इमोशनल इंटेलिजेंस, emotional intelligence is the ability of the manager, to understand and control their own emotions in times of stress, as well as be aware what is going on in the economy, and then deal with it accordingly, यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स क्या होते हैं, कंप्लीट। Moving on to part B. Briefly explain 2 of Goleman's emotional intelligence competency. इसमें मैंने कौन सी लिखवाई हुई है? इसमें मैंने लिखवाई हुई है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट ना, तो सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल लिखवा दो, ठीक है। तो हमें पूछ रहे हैं कि 2 of Goleman's emotional intelligence competencies बताओ। 4 हैं, कितनी है? 4 हैं। हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट, सही है, और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स भी कहते हैं इसको, या हम इसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, सही है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो मैंने पिछले आंसर में सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट मैंने लिखवा दिया है, तो इस दफा हम सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल्स लिखते हैं। सोशल अवेयरनेस is the competency, social awareness is the competency in which the manager has the knowledge of what is going on, around the business, and have empathy while dealing with workers and other stakeholders अगले पैराग्राफ से दूसरा लिख लो। social skills
or relationship management is the ability of the manager. Social skills or relationship management is the ability of the managers to be able to effectively communicate with individuals and have the ability to persuade them as well as understand their perspective. अब इसके बाद ही देख लो, ये दूसरी इमेज हमारे सामने आ रही है जिसके अंदर वापस वही सवाल पूछ रहा है, डिफाइन लीडरशिप नॉन लिख चुके। इसके बाद हमसे पूछ रहा है टू स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बता दो। हमारी बुक 4 बताती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजीज-फेयर, पैटर्नलिस्टिक। सिलेबस में 3 है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजीज-फेयर। सवाल मुझे पूछ रहा है 2 को एक्सप्लेन कर दो। 2 को हम ऑटोक्रेटिक को एक्सप्लेन कर देंगे और डेमोक्रेटिक को एक्सप्लेन कर देंगे। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, इसके लिए सिर्फ वर्बली बता रहा हूं, फिर आप लोग खुद लिख लो। Autocratic leadership style is what? It is a leadership style in which there is one-way communication, no coordination, while the workers are not involved in the decision-making process. अभी तक के लिए बहुत। Democratic leadership style is what? In which there is two-way communication, coordination, while the workers are involved in the decision-making process. देखो जो leadership style है ना, कोई भी best, it all depends on the skills of the worker, the economic condition and the business environment. क्या आपके हालात क्या हैं और आप किस कंडीशंस के अंदर हो, ठीक है। नोट कर लो, कम से कम क्वेश्चन नोट डाउन कर लो अपने पास। ब्रीफली एक्सप्लेन 2 styles of leadership for 3 marks. ऑनलाइन वालों नोट कर लिया? ठीक है, अभी तक के लिए कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन या सब सेट है? तुम लोगों के लिए कोई क्वेरी, सर के साथ जो चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई मसला, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ में ना आया हो? सब क्लियर है? ठीक है, ओके। तो हमारे पास आज वापस एक शॉर्ट आंसर का सेशन हो गया। होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास हम वापस दोबारा की प्रैक्टिस वही रखेंगे और एक लॉन्ग आंसर के सेशन पे जाएंगे, क्योंकि पिछला सेशन हमारा लॉन्ग आंसर पे था, अब वापस हम शॉर्ट आंसर्स पे है। अगले सेशन में हम वापस इस पे चले जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स पे। और ये एक गूगल ड्राइव बना के मैं अपलोड भी कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे नहीं लिंक डालूंगा सबका, ताकि ये सेशन आपको जब भी देखना हो आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो आज का सेशन यही क्या करते हैं, खत्म करते हैं और रिकॉर्डिंग कर देते हैं, स्टॉप।